رب سے جڑنے کا سفر، قسط نمبر 2۔ فاطمہ کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر قرۃ العین محبت سے آگے بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ گلے لگتے ہی فاطمہ نے ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ قرۃ العین ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے گلے سے لگائے کتنی ہی دیر تک خاموشی سے اس کی کمر کو سہلاتی رہی۔ قرۃ العین بھی اسی رستے سے گزر کر آئی تھی، وہ سمجھ سکتی تھی کہ فاطمہ کس کرم سے گزر رہی ہے۔ بعض اوقات انسان کو واقعی کوئی ایسا ساتھ چاہیے ہوتا ہے جو اس کے اندر کے اٹھتے ہوئے شور کو خاموش بہتے ہوئے آنسوؤں سے سمجھ آئے۔ ایسا ساتھ جس سے میسر ہو وہ بہت خوش قسمت انسان ہے۔ قرۃ العین جانتی تھی کہ فاطمہ کو وقت چاہیے، اس لیے وہ خاموش رہی، یہاں تک کہ فاطمہ نے روتے ہوئے پوچھا، قرۃ، کیا اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے اپنی ساری زندگی اس کی نافرمانی میں گزار دی ہے، مجھے اپنا کوئی ایسا نیکی کا کام یاد نہیں جس کی قبولیت کا مجھے یقین ہو، وہ کیسے معاف کریں گے مجھے؟ فاطمہ کے لہجے کی ندامت دیکھ کر قرۃ العین نے اسے خود سے جدا کیا اور اس کا روتا ہوا گلابی چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہنے لگی، اللہ کیسے معاف نہیں کریں گے چندا، وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ انسان جب اپنے دل میں سچی ندامت لے کر اس کے حضور توبہ کرتا ہے نا، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اس سے معافی مانگتا ہے نا، اس گناہ والی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے نا، تو اللہ خود بڑھ کر اسے تھامتے ہیں۔ مگر قرۃ، میرے گناہ کوئی چھوٹے گناہ تو نہیں ہے نا؟ فاطمہ اس بات کی مزید یقین دہانی چاہتی تھی کہ کیا اللہ اسے واقعی معاف کر دیں گے۔ اچھا رکو، میں تمہیں کچھ دکھاتی۔ قرۃ العین جانتی تھی کہ فاطمہ کو کیسے یقین دلایا جا سکتا ہے۔ وہ اٹھ کر اپنی الماری کی طرف گئی اور اس میں سے اپنا قرآن نکالنے لگی۔ وہ سفید، نفیس اور خوبصورت جلد والا قرآن تھا جس کو دیکھ کر ہی محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی بہت محبت سے حفاظت کی گئی ہے۔ فاطمہ ٹکٹکی باندھے اس قرآن کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ یاد کرنے کی ایک ناکام کوشش کرنے لگی کہ اس نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا۔ فاطمہ، تم مجھ سے پوچھ رہی تھی نا کہ مجھے کیسے یہ کتاب میرے سوالوں کے جواب دیتی ہے، یہ دیکھو۔ قرۃ العین نے قرآن کھولا اور فاطمہ کے سامنے رکھ دیا۔ لو، تمہارے پہلے سوال کا جواب۔ قرۃ، میرا وضو نہیں ہے۔ فاطمہ شرمندہ، کوئی بات نہیں، تم ایسے ہی دیکھ لو چندا، میں نے پکڑا ہوا ہے۔ قرۃ العین نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا، فاطمہ نے بہت سے دیندار لوگ دیکھے تھے، وہ ہمیشہ ان کے بارے میں ایک بدگمانی کا شکار رہی تھی کہ یہ لوگ بس خود کو ہی بڑا نیک سمجھتے ہیں، مگر آج اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا یہ گمان درست نہیں تھا۔ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ تو اس کی اپنی دین سے دوری کی ندامت تھی جس کی وجہ سے وہ دیندار لوگوں کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی۔ واقعی کچھ باتوں کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، کچھ حقیقتیں وقت سے پہلے آشکار ہو جائیں تو شاید اپنی قیمت کھو دیں۔ کچھ جذبات کی حقیقت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، ان کی اصلیت ایک وقت کے بعد پتہ چلتی ہے۔ وہ اب بھی شرمندہ سی تھی۔ تو کیا واقعی مجھے بھی جواب دے گی یہ کتاب؟ کیا میں واقعی اس لائق ہوں؟ فاطمہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کی نظریں قرآن پاک کے کھلے صفحے پر جا کر ٹھٹک گئیں۔ رب سے جڑنے کا سفر، قسط نمبر 3۔ فاطمہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ایسا گھرانہ جہاں بس ظاہری اور رسمی اسلام تھا کہ دل کیا تو کوئی نماز روزہ کر لیا، دل کیا تو چھوڑ دیا۔ کوئی فوتگی ہوئی تو 2-3 دن قرآن پڑھا اور پھر بند کر کے ریشمی غلافوں میں اونچی شیلف پر رکھ دیا جاتا۔ کوئی فضیلت والے ایام آتے تو ادھر ادھر سے جو کوئی بتاتا، کوئی وظائف یا نوافل وہ اہتمام سے پڑھے جاتے، یہ جانے بغیر کہ اسلام میں ان کی کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں۔ ان کی فیملی چھوٹی سی تھی، 2 بھائی تھے، ان میں سے بڑا بھائی حیدر ڈاکٹر تھا اور ملک کے مشہور و معروف ہاسپٹل میں سرجن تھا، جبکہ دوسرا بھائی سیف ٹین ایج سے ہی بے راروی کا شکار ہو گیا۔ والد نے ملک کی بہترین اور مہنگی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ کروایا تھا، مگر صاحبزادے وہاں پڑھائی کے علاوہ باقی ہر کام کرنے جاتے تھے۔ فاطمہ ان دونوں بھائیوں سے چھوٹی تھی، جو کہ یونیورسٹی میں ہی BS کی اسٹوڈنٹ تھی۔
पढ़ाई में अच्छी थी, मगर हर एक के साथ जल्दी घुलती मिलती ना थी। जो इसके टेस्ट का होता उसके साथ उसकी फौरन बन जाती थी। कुरतुलैन और फातिमा दोनों क्लास फेलोज थी, जबकि कुरतुलैन एक ऐसे खानदान से तलक रखती थी जहां दिन रात एक करके मेहनत की कमाई से बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता था। वो बहुत मेहनती लड़की थी। उसने एफएससी के बाद कुरान सीखने में 2 साल लगाए थे और मदरसे से फारिग होने के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। फातिमा ने कभी भी खुद कुरतुलैन से अलग सेलेक्ट नहीं की थी, मगर कुरतुलैन हमेशा अपनी तमाम क्लास फेलोज से बहुत अच्छे इखलाक से मिला करती थी। वो वाहिद इस क्लास में लड़की थी जो मुकम्मल पर्दे में आती थी, मुकम्मल स्याह बाया। उसके पर्दे में उसकी आंखों के सिवा कुछ नजर न आता था, और आंखें भी वो जो हया से भरी हुई हो, अक्सर झुकी ही रहती थी। इसके पर्दे पर अक्सर क्लास फेलोज इसका मजाक भी बनाती थी। कुछ ने तो इसका नाम भी काला कौवा रखा हुआ था, मगर वो हमेशा ही ऐसी बातों को समाइल करके इग्नोर कर देती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसे उसके रब ने यूनिक बनाया है, तो वो ईसा से कमतरी का शिकार होकर इस दीन और हिदायत की नेमत की नाशुक्री नहीं कर सकती थी। फातिमा ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, मगर अब हालात ने ऐसी करवट ली थी कि फातिमा को कुरतुलैन के पास आना पड़ा। फातिमा की नजरें कुरान पर जमी मुसलसल फैलती जा रही थीं। उसे ऐसे लग रहा था किसी ने इसका दिल मुट्ठी में लिया और फिर मुट्ठी को जोर से भींच लिया हो। वो अपनी ही जगह सुन्न होकर रह गई थी। वाकई इसके अभी थोड़ी देर पहले किए हुए सवालों का जवाब उसके सामने मौजूद था। ऐसा कैसे हो सकता था? उसने तो कभी कुरान को ऐसा नहीं समझा था। उसने तो बचपन से यही सीखा था कि इस कुरान को सवाब हासिल करने के लिए पढ़ा जाता है। इसका अदब इतना करना है कि इसको अपने पीछे नहीं रखना। आज इसे एहसास हो रहा था कि अब तक वो इस अजीम किताब की बेअदबी करती आई है। अब तक तो उसने किताब को अपने पीछे ही डाले रखा था। शैतान भी कैसे कैसे खेल खेलता था। जिस किताब के जरिए जन्नत का रास्ता मिलना था, उसी को बुलवाकर दुनिया को जन्नत बनाने के ख्वाब लोगों को दिखाने में मसरूफ था। हत्ता कि जिंदगी की इन लंबी लंबी उम्मीदों ने मुसलमानों को इनके दिलों की पुरसकून जन्नत से महरूम कर दिया था। इसका ज़हन बेइंतहा उलझ चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसके सामने अल्लाह की रोशन आयात मौजूद थी। क्या वो वाकई इसके लिए वहां मौजूद थी? ए पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, खुदा की रहमत से नाउमीद ना होना। खुदा तो सब गुनाहों को बख्श देता है, और वो तो बख्शने वाला मेहरबान है। अपने रब की तरफ रजू करो और उसके फरमाबरदार हो जाओ, इससे पहले कि तुम पर अजाब आ जाए, फिर तुम कोई मदद न किए जाओगे। सूरह जुमर 53 और 54। वो जैसे जैसे आयात का तर्जुमा पढ़ती जा रही थी, उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। आंखें फिर से उबलना शुरू हो गई थी। गरम गरम आंसू उसके चमकते गुलाबी चेहरे पर बहने लगे। किरत, क्या वाकई अल्लाह ने मुझे जवाब दिया? उसकी आवाज की कपकपाहट कुरतुलैन बखूबी महसूस कर रही थी। बिल्कुल फातिमा, अगर उसने तुम्हें ऐसे संभालना ना होता तो सोचो क्यों तुम्हें यहाँ लेकर आए। क्यों तुमने मुझसे वो सब कहा जो बहुत कम लोग कहने की हिम्मत करते हैं। क्यों कुरान की इन्हीं आयात में तुम्हारे जवाब थे। ये इत्तेफाक नहीं है फातिमा, ये सब उस प्यारे रब की प्लानिंग है। फातिमा के चेहरे का रंग फक हो चुका था। उसने कभी अल्लाह के बारे में ऐसा नहीं सोचा था, या शायद कभी अल्लाह के बारे में कुछ सोचा ही ना था। क्या ये सब वाकई उसकी प्लानिंग थी? जिन हालात से वो गुजर कर यहाँ तक आई थी, क्या चाह रहे थे अल्लाह इससे? उसे अब इस सवाल का जवाब चाहिए था। रब से जुड़ने का सफर, किस्त नंबर 4। बहुत कुछ था जो उसके अंदर कच्चे धागों के मानद उलझता जा रहा था। वो मजीद वहां रुकने की पोजीशन में न थी। अब उसे यहाँ से जाना था, किसी ऐसी जगह जहां बस वो अपने रब के सामने खुलकर रो सके। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया किरत। तुम नहीं जानती आज तुमने मुझे क्या दिया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी।
फातिमा ने खड़े होकर आंसू साफ करते हुए कहा। कुर्रतुल ऐन मुस्कुराते हुए उसके गाल को थपकते हुए प्यार से बोली, अरे लड़की, ये सब तो तुम्हें अल्लाह ने आज उस वक्त उस जगह देना ही था, मुझे तो बस उसने जरिया बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्लाह का बेशुमार एहसान है हम पर। ये कैसी लड़की थी, किस दुनिया की थी, कैसी आजिज़ी थी उसमें। फातिमा को उसे देखकर बेइंतहा रश्क आ रहा था। उसके दिल में ख्वाहिश जागी कि मुझे भी अल्लाह की ऐसी ही प्यारी बंदी बनना है। ये सोचते हुए वो बहती आंखों से मुस्कुरा दी। उसके बाद फातिमा कुर्रतुल ऐन से उसका नंबर लेकर उसके घर से निकल आई। फातिमा के जाने के बाद कुर्रतुल ऐन ने हाथों में पकड़े हुए कुरान को सीने से लगा लिया और मुस्कुराते हुए अपने कमरे की खुली खिड़की की तरफ आए। उसके कमरे की खिड़की घर के पिछली तरफ खाली प्लाट में खुलती थी, जहां उसने गली के बच्चों के साथ मिलकर सफाई करके छोटे छोटे पौधे उगा रखे थे। हल्की हल्की घास भी उगाई थी। वो सुबह यूनिवर्सिटी जाने से पहले वहां मिट्टी का प्याला पानी से भरकर रख जाती थी, ताकि सारा दिन जो भी परिंदा और जानवर इसमें से पिए उसके लिए वो सदका लिखा जाता रहे। बाहर बहुत सुहाना मौसम था। मगरिब का वक्त होने ही वाला था। तेज ठंडी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से दरख्त की टहनियां ऊपर नीचे झूल रही थी, गोया अपने खालिक की तस्बीह कर रही थी। उसे फौरन वो आयत याद आई जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था, सातों आसमान और जमीन और जो लोग इनमें हैं सब इसी की तस्बीह करते हैं, और मखलूकात में से कोई चीज नहीं मगर उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम इनकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबार और गुफ्फार है। सूरह अल असरा 44। इस अर्श पर मुस्तवी रब का कलाम हक था, सच था, मगर बहुत कम लोग ही थे जो इसके कलाम से हिदायत लेते थे। ये आयत याद आते ही उसने जेरे लब तस्बीह करना शुरू कर दी। पत्तों की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाट और गुरूब होते हुए सूरज से सारा समा बहुत खूबसूरत लग रहा था। कायनात की हर चीज को देखकर इसे अपना रब याद आता था, और वो दिल ही दिल में उसकी बनाई हुई हर छोटी बड़ी तखलीक को सराहती रहती थी। अभी भी वहां खड़े खड़े वो यही कर रही थी। जर्द होते आसमान की जानिब मुस्कुराते हुए देख रही थी, गोया आसमानों के पार कहीं किसी को महसूस कर रही हो। उसे फातिमा पर बहुत प्यार आ रहा था। उसे हमेशा से इन लोगों से बहुत अपनायत महसूस होती थी जो अपने रब की तरफ पलट आते हैं। वो अपने रब से मोहब्बत करती थी, इसलिए उसे हर उस इंसान से मोहब्बत थी जो उसके रब से मोहब्बत करता था। फातिमा भी इस रास्ते पर कदम रख चुकी थी। उसके दिल से फातिमा के लिए बहुत दुआएं निकल रही थी कि अल्लाह उसके दिल को अपने लिए खास कर दे, उसे अपनी तरफ खींच लाए, उसे अपने खास बंदों में शामिल कर। दूर पार से उसे मगरिब की अजानें सुनाई दी। वो फौरन से पलटी तो उसे ख्याल आया कि उसके हाथों ने अभी भी कुरान को बहुत मजबूती मगर मोहब्बत से सीने से लगाया हुआ था। वो वापस रखने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ रही थी कि उसने चलते चलते ऐसे ही कुरान खोला तो सामने ये आयत थी, और जब वो लोग इस किताब को सुनते हैं जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, तो तुम देखते हो कि उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने हक बात पहचान ली, और वो खुदा की जानिब में अर्ज करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम ईमान ले आए, तो हमको मानने वालों में लिख ले। अल माइदा 83। उसकी धड़कन फौरन से तेज हो गई, कदम वहीं जम गए और आंखें नम हो गई। इन्हीं पुरनम आंखों से मुस्कुराकर इस रोशन आयत पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, ओ फातिमा, तुम क्या जानो तुम्हारा रब तुम्हारे इन बहते आंसुओं की कितनी कदर करने वाला है। जारी है।